Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have discussed about some topics like linkage map, sex linkage and crisscross inheritance. Now in this video, I am going to discuss about sex determination process and the mechanism involved in sex determination. So let us start the class. So students, today I am going to discuss the topic sex determination. What is this sex determination? This sex determination is a biological system that determines the development of sexual characteristic in an organism. That means सेक्स डिटर्मिनेशन जो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर ऐसा सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि जो फर्दर ऑफस्प्रिंग न्यू ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन में बनेंगे, उनमें किस तरह का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा या फिर इन शॉर्ट वो ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा. दैट ऑफस्प्रिंग विल बी अ baby girl or that offspring will be a baby boy, means they will be male or female. So exactly, in short, sex determination is the establishment of sex of an organism. Now the mechanism of sex determination means ये sex determination के system या process का mechanism क्या है. There are two types of sex determination found in animals. Animals में दो तरह के sex determinations जो है वो पाए जाते हैं. First one is environmental sex determination and second is chromosomal sex determination. Now first of all, environmental sex determination. You know, in some animals this sex determination मीन्स जो किसी ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स क्या होगा, वो मेल हो या फीमेल, दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. कम्प्लीटली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो कमिंग ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू इंडिविजुअल है, उसका सेक्स क्या होगा. दैट इंडिविजुअल विल बी मेल और फीमेल. Now I will discuss some factors, some environmental factors which decides or which determines the sex of the animals. Now first factor is association with females. Now to understand this factor, environmental factor, that is association with females, we will take an example of a worm, Bonellia, a sea worm. Bonellia is a sea worm, and when this sea worm is in the stage of larva, means sea worm का जो larva होता है, this larva is sexually undifferentiated, means sea worm जो बोनेलिया है, बोनेलिया के लार्वा जो है वो ना मेल होते हैं ना फीमेल. उस वक्त इनका कोई सेक्स डिटरमाइंड नहीं होता. बट इसके बाद जो उनके आसपास कंडीशन होगी उस पर ये डिसाइड होता है कि फर्दर वो लार्वा मेल होगा या फीमेल. इफ दिस लार्वा कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ग्रोन ऑफ फीमेल्स, अगर ग्रोन फीमेल्स जो है उनके कॉन्टैक्ट में ये लार्वा अगर आए, बोनेलिया के लार्वा, देन दैट लार्वा विल डेवलप इनटू मेल. बट इफ दिस लार्वा डज नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विथ ग्रोन अप फीमेल्स, अगर ग्रोन अप फीमेल्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, देन दैट लार्वा विल डेवलप इनटू फीमेल. मीन्स अगर आसपास ग्रोन अप फीमेल हुए लार्वा के तो वो जो लार्वा है वो मेल बनेगा, और अगर ग्रोन अप फीमेल उस लार्वा के आसपास नहीं हुए, देन दैट लार्वा विल बिकम अ फीमेल. So in this way, association with grown up females are deciding the sex of the larva of sea worm Bonellia. Now the second environmental factor is egg size. Here also we will take example of sea worm like Dinophilus. In this sea worm, egg size determines the sex of organism. Means जो egg है वो उसका साइज़ क्या है, इससे डिटरमाइन करते हैं कि फर्दर जो उस एग के अंदर एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर के फीमेल बनेगा या मेल. नाउ इफ़ द साइज ऑफ एग इज़ लार्जर, देन द एम्ब्रियो इनसाइड दैट एग विल डेवलप इनटू फीमेल, एंड इफ द साइज ऑफ एग इज स्मॉलर, देन द एम्ब्रियो इनसाइड दैट एग विल फॉर्म मेल or become male. So egg size also determines, egg size is a type of environmental factor, and it is also determining the sex of the coming offspring. Now the next environmental factor is incubation temperature. In some animals, incubation temperature of egg decides the sex of embryo. Now the first question arises, what is this incubation temperature?
for egg. The embryo present inside the egg, for its proper development, it requires a particular temperature. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उस एग को रखना होता है, जिसके बाद ही जो एम्ब्रियो उस एग के अंदर है वो प्रॉपरली डेवलप हो सकता है. दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक इंक्यूबेशन टेम्परेचर और एक इंक्यूबेशन पीरियड. मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम तक उस एग को एक ऑप्टिमम और पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे रखना होता है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन दैट एग. ओके, तो ये जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है, इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग, कुछ एनिमल्स में ये इंक्यूबेशन टेम्परेचर भी डिसाइड करता है कि एम्ब्रियो का सेक्स क्या होगा. कि जिस भी टेम्परेचर पे उस एग को इंक्यूबेट किया जा रहा है वो डिसाइड करता है कुछ एनिमल्स में कि जो एम्ब्रियो उसके अंदर है उसका सेक्स क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स के अगर एग का इंक्यूबेशन टेम्परेचर इफ़ इट इज़ बिलो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उसे 28 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे उसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर है उसके एग का, टर्टल्स के एग का, देन द एम्ब्रियो इनसाइड दैट एग विल डेवलप इनटू मेल. And if the egg of turtle is incubated above 33 degree centigrade, then the embryo inside that egg will become female. And if the incubation temperature of the egg of turtles is between 28 degree centigrade to 33 degree centigrade, means ना तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो और ना ही 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो, इसके अगर बीच में हो, then there is equal chances of becoming the embryo into male और फीमेल. दोनों ही सेक्सेस जो हैं मेल और फीमेल के वो बन सकते हैं इक्वल नंबर के. इसमें it will be a random selection that the embryo will be male or female. Now the next organism in which incubation temperature of its egg determines the sex of the embryo is American alligator. If the egg of American alligator is incubated 30 degree centigrade at 30 degree centigrade or below 30 degree centigrade, then the embryo will become female. And if the egg of American alligator is incubated above 34 degree centigrade, then the embryo inside the egg will become male. Means American alligator के egg को अगर 30 या उससे नीचे डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट करे तो उसमें एम्ब्रियो जो है वो फीमेल होंगे, और अगर 34 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उस एग को इंक्यूबेट करे, उसका टेम्परेचर उससे ऊपर रखे 34 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो जो उस एग के अंदर एम्ब्रियो है it will become male. Now the another organism in which temperature decides the or incubation temperature decides the sex of the offspring is crocodile. In crocodile, if the egg is incubated at higher temperature at about 34 degrees centigrade, then the embryo inside that egg will become male. And if the egg of crocodile is incubated at lower temperature, means around 31 degree centigrade or usse kam, then the embryo inside the egg will become female. So these were some animals in which sex of the offspring is decided by the incubation temperature of the egg. And above were some factors, environmental factors, which were deciding the sex of the organism or which were determining the sex of the offspring. Now the second type of sex determination is chromosomal sex determination. And this chromosomal sex determination mainly occurs in diploid and unisexual organisms. जो diploid और unisexual organisms होते हैं उन्हें में ही ये chromosomal sex determination होता है. And you know, in this type of sex determination, the sex of the chromosome is determined by a specific chromosomes. एक specific chromosome present होता है individual में जो ये determine करता है कि that individual will be male or female, and that specific chromosome is known as sex chromosome. For example, in human beings, as you know that human being contains 46 chromosomes, and among these 46 chromosomes, 44 chromosomes are called autosomes, and the rest of the 2 chromosomes are known as sex chromosomes, which determines that the individual or that human being will be male or female. Now, the types of
chromosomal determination, chromosomal sex determination. There are 5 chromosomal sex determination type. The first is XX and XY type. Second is XX, X0 type. Third is ZW and ZZ type. Fourth is Z0 and ZZ type. And fifth is haploid diploid type. Now first of all, XX and XY type. This XX and XY type, in this case, जो फीमेल्स होती हैं, द फीमेल्स कंटेन्स होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स, मीन्स जो फीमेल्स होंगी उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो होमोमॉर्फिक, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी एंड होमो मीन्स सिमिलर. तो जो फीमेल्स होती है उसमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम इट विल बी XX. इसमें इस XX XY टाइप में जो फीमेल्स होती हैं वो होमोमॉर्फिक होती हैं क्योंकि जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स वो एक जैसे होते हैं फीमेल्स में. सो इन दिस केस फीमेल्स we can say that females are homozygous for sex chromosomes, means एक इनके जाइगोट में जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो एक जैसे हैं. और मेल्स जो होते हैं, इस केस में जो मेल्स होते हैं दे आर हेट्रोमॉर्फिक और यू कैन से दे आर हेट्रोगैमेटिक. They contains heteromorphic sex chromosomes, means they contains 2 different types of sex chromosomes. So in this case males contain XY type sex chromosomes and they are called as heterozygous for sex chromosomes. And you know ये जो XX और XY टाइप है ये किस में मिलता है? ये जनरली मिलते हैं इंसेक्ट्स में. ऐसा जो टाइप है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का इंसेक्ट्स में मिलते हैं और मोस्टली सारे मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो ये XX और XY टाइप क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में भी मिलता है. एंड यू नो जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर होता है, ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, मीन्स जो कमिंग इंडिविजुअल है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द मेल पार्टनर. सो द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन दिस XX XY टाइप इज कॉल्ड एज मेल हेट्रोगैमेटिक टाइप because male contains 2 different types of sex chromosomes, so they used to produce 2 different types of gametes. That's why the sex of offspring depends upon the male partner, and this type of sex determination is called male heterogametic type of sex determination. Now next type is XX and X0 type. In this case also females are homogametic, means they are homozygous for the sex chromosome, means here also this females will contain the sex chromosome of XX type. इसमें भी जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल्स में वो एक जैसे हैं. दैट सो फीमेल्स आर हियर ऑल्सो होमोजाइगस और या कह सकते हैं होमोगैमेटिक फॉर द सेक्स क्रोमोसोम. एंड मेल्स इन दिस केस contains only one X chromosome. Males here contains only one X chromosome. अब डिफरेंस ये है कि पहले वाले में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स थे जो कि दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे थे, पर यहाँ पर सिंस आई हैव टोल्ड दैट दिस इज X0, X0 और X0 मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल्स में इस कंडीशन में इस टाइप में एक क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं होता. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर 0 और नॉट. सो हियर वी कैन नॉट से दैट मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक या फिर हेट्रोजाइगस. ये यहाँ पर मेल्स हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोजाइगस नहीं होते, सिंपली इनके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है. बट यहाँ पर भी केस जो है जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऑफस्प्रिंग का वो मेल पार्टनर पे ही डिपेंड होता है. मीन्स यहाँ भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप है वो मेल हेट्रोगैमेटिक टाइप ही है, भले ही एक और क्रोमोसोम ना हो. बट जो गैमेट्स बनते हैं मेल्स में, जो गैमेट्स बनते हैं वहाँ पर जो वो भी 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, क्योंकि एक में जिसमें एक में तो जो ऑटोजोम्स हैं उसके साथ एक्स सेक्स क्रोमोसोम आएगा, बट दूसरे वाले में जो ऑटोजोम्स हैं उसके साथ कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा. सो मेल्स इस केस में भी 2 तरह के गैमेट्स बनाते हैं, जिसमें से एक गैमेट में तो सेक्स क्रोमोसोम X है, दूसरे वाले गैमेट में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता. दैट्स वाई यहाँ भी जो
ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स जो है वो मेल पर ही डिपेंड करता है, फीमेल पे डिपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पर भी फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है। और ये XX एक्सोटाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये होता है राउंड वॉर्म्स में, इट इज फाउंड इन ग्रासहोपर्स और ऑल्सो इन कॉकरोच एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ZW and ZZ टाइप. In this case females are heterogametic, मीन्स यहाँ पर इस टाइप में जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगेमेटिक होती है, मीन्स उनका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 डिफरेंट टाइप का होगा, मीन्स द इंडिविजुअल विच इज कंटेनिंग द ZW टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, हियर दे आर फीमेल्स, ओके। और जो मेल्स होते हैं यहाँ पर इस केस में मेल्स जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होंगे, मीन्स दे विल बी होमोजाइगस फॉर दी सेक्स क्रोमोसोम्स बिकॉज दे कंटेन्स 2 सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन देम। सो यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप होगा, अब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का जो कमिंग ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स मेल पर नहीं फीमेल पे डिपेंड करेगा, ओके। सो जो यहाँ टाइप होगा सेक्स डिटर्मिनेशन का, दैट विल बी फीमेल हेट्रोगेमेटिक टाइप। इन 2 केसेस में जो, क्योंकि ऑफस्प्रिंग का सेक्स जो है वो मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि मेल्स जो है दो तरह के गैमेट्स बनाते थे, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप है मेल हेट्रोगेमेटिक टाइप। सिंस यहाँ पर फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक होती हैं, मीन्स उनके पास 2 अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसकी वजह से वो 2 अलग तरह के जो है गैमेट्स बनाएंगी। इस वजह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप है यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का, इट विल बी फीमेल हेट्रोगेमेटिक टाइप because here female partner decides the sex of offspring. Now next type is Z0 and ZZ type. Okay, first of all this ZW and ZZ type is mostly found in birds and reptiles. कुछ इसमें जो है ये ज़्यादातर ये ZW ZZ type जो है वो birds में पाए जाते हैं और कुछ reptiles में भी मिलते हैं। तो याद रखें कि जो birds होती हैं उन birds में फीमेल जो होती हैं वो हेट्रोगैमेटिक होती हैं और मेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक, ओके। Z0 एंड ZZ टाइप जो है ये होता है जनरली बटरफ्लाइज में, मॉथ्स में। तो बटरफ्लाइज में Z0 और ZZ टाइप का क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब यहाँ पर भी सिमिलर टू द बर्ड्स, यहाँ पर भी जो फीमेल्स होंगी वो हेट्रोगैमेटिक होंगी, राइट। फीमेल्स जो है वो 2 तरह के गैमेट्स बनाएंगी, तो फीमेल जो है वो होंगी Z0 टाइप और मेल्स जो होंगे दे विल बी होमोगैमेटिक, मीन्स दे विल फॉर्म सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, तो दे विल कंटेन सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स ZZ। अब फीमेल्स में यहाँ पर होता ये है कि गैमेट्स तो 2 तरह के बनते हैं, बट एक में Z क्रोमोसोम होता है और दूसरा गैमेट जो बनता है उसमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं होता, बिकॉज दिस 0 रिप्रेजेंट्स दैट फीमेल्स, in this case females contains only 1 sex chromosome and no other sex chromosomes. That's why we are writing here not. But since females here in this case also, in case of butterflies also, they are forming the 2 types of gametes in which one contains the Z sex chromosome and one gamete will contain no sex chromosome. That's why in this case also the sex of the offspring is dependent upon the female partner. फीमेल पार्टनर के ऊपर ही जो सेक्स है ऑफस्प्रिंग का वो डिपेंड करेगा, एंड दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड एज फीमेल हेट्रोगैमेटिक टाइप. Now the next is haploid diploid type of chromosomal sex determination. Now this type of sex determination generally occurs in honeybees and ants. जो चींटियाँ होती हैं, जो हनी बीज होती हैं, उनमें ये हेप्लॉयड डिप्लॉयड जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, राइट, एंड जो मेल्स होते हैं, these males are generally or these males are always haploid, मीन्स इनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा और मेल्स के पास, हनी बीज और एंट के जो मेल्स होंगे उनके पास सिर्फ एक
क्रोमोसोम का सेट होगा। तो इससे पता चलता है कि जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होंगी एंट में या बीज में, दे विल बी फीमेल, और जो भी हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो भी हैप्लॉयड बी या एंट होंगे, दे ऑल विल बी मेल। मेल्स हैप्लॉयड यहाँ इस वजह से होते हैं बिकॉज दीज मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्थेनोजेनेसिस process. Parthenogenesis process is the process in which the egg or ovum of the female develop into an organism without fertilization. बिना मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के ही जो एग है फीमेल का वो डेवलप हो जाता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। तो इस केस में सिंस मेल गैमेट, as you know that ovum is a female गैमेट एंड इट कंटेन्स ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो अगर उसके साथ आकर मेल गैमेट ने फ्यूज नहीं किया तो वो डिप्लॉयड जाइगोट नहीं बना सकते। तो अगर सिर्फ वही हैप्लॉयड ओवम या एग एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, देन दैट विल प्रोड्यूस एन हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप जो होता है वो बी और एंट में होता है, और इस केस में जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फीमेल्स होंगी और जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मेल्स होंगे। Study the sex determination in humans in detail, and as I have discussed, the sex determination in humans is XY type, and you also know that human beings contain 46 chromosomes, which is present as 23 pairs, in which 22 are autosomes and 1 pair is sex chromosome. So we can write the chromosomes in this way also, means human female may contain 44 autosomes plus 2x sex chromosomes, and human male contains 44 autosomes plus 2 sex chromosomes, that is XY. So now we will see how the sex is determined in human beings. We will take two parents, father and mother. Now male contains 44 autosomes and 2 sex chromosomes of XY, means यहाँ पर ये heterozygous है, male is heterozygous here, क्योंकि उसके पास जो गैमेट है वो जो गैमेट बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे, क्योंकि उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दो डिफरेंट टाइप के, एक्स और वाई टाइप, और जो फीमेल है मीन्स जो मदर है उसके पास 44 ऑटोसोम्स है और 2 एक्स क्रोमोसोम, मीन्स जो फीमेल है यहाँ पर वो जो है वो होमोजाइगस है, मीन्स यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, दोनों एक जैसे बनेंगे, मीन जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो एक्स टाइप बनेंगे। नाउ फादर और मदर के जब गैमेट्स बनते हैं, मीन्स जो मेल जब गैमेट्स बनाएंगे तो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनने के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, मीन्स ऑटोसोम्स क्या हो जाएंगे, वो 22 हो जाएंगे, और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है इसमें से जो एक्स वाला है वो एक गैमेट में और वाई वाला दूसरे गैमेट में आएगा। वैसे ही मदर में मीन्स जो फीमेल है उसमें जब एग बनेगा तो जो ये ऑटोसोम्स है हाफ होकर के दो अलग गैमेट्स में जाएंगे, मीन्स 22 एंड दिस बोथ एक्स सेक्स क्रोमोसोम विल डिवाइड एंड विल कम इनटू 2 गैमेट्स, मीन्स एक में एक्स और दूसरे में भी एक्स, मीन्स ये दोनों क्रोमोसोम्स एक साथ एक गैमेट में नहीं आते। तो अब गैमेट बन गया, मीन्स फादर मेल इन ह्यूमंस फॉर्म्स 2 types of gametes or 2 types of sperms, 50% X type and 50% Y type. Okay, and females forms all the X type gametes. जो भी gametes होंगी मीन्स जो भी egg होंगी वो 100% X type ही होंगी। अब देखिए कि फ्यूजन के बाद रिजल्ट क्या होता है। अगर मेल का जो X type sperm है it fuses with the egg, क्योंकि सारे egg तो क्या है X type ही है, तो अगर मेल का X टाइप स्पर्म फीमेल के एक्स एग से फ्यूज करता है, देन वी गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स सेक्स क्रोमोसोम, एंड एज यू नो कि ह्यूमन फीमेल में एक्स सेक्स क्रोमोसोम का मतलब दिस ऑफस्प्रिंग विल रिजल्ट इनटू अ गर्ल चाइल्ड, मीन्स ये ऑफस्प्रिंग जो होगा वो बेबी गर्ल होगी या गर्ल चाइल्ड होगी। वैसे ही अगर ये एक्स क्रोमोसोम किसी भी दूसरे एक्स एग के साथ, मीन्स ये एक्स वाला स्पर्म किसी भी दूसरे एक्स एग के साथ फ्यूज करेगा तो वो बेबी गर्ल ही बनेंगे। अब डिफरेंस आता है ये वाई क्रोमोसोम के साथ, व्हेन द वाई टाइप स्पर्म विल फ्यूज विद दिस एक्स टाइप एग देन इट विल गिव दिस combination that is 44 plus XY sex chromosome, and in this case
the offspring will be baby boy, means जो offspring का gender होगा वो male होगा, because sex chromosome कौन से हैं, X, Y. वैसे ही अगर ये Y टाइप स्पर्म इस X टाइप एग के साथ फ्यूज करे तो भी हमारे पास वही कॉम्बिनेशन आता है 44 ऑटोजोम्स प्लस XY सेक्स क्रोमोसोम, मीन्स ये वाला जो ये ऑफस्प्रिंग है वो भी बेबी बॉय होगा यानी मेल होगा. तो आप देख सकते हैं कि 50% जो है वो फीमेल चाइल्ड है और 50% जो बन रहे हैं वो मेल चाइल्ड बन रहे हैं. इससे ये क्लियर है कि जो चांसेस है मेल या फीमेल ऑफस्प्रिंग का जो जेंडर है वो मेल होगा या फीमेल, ये 50% है. मीन्स वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं. 50-50% चांसेस होता है और ये चांस भी डिपेंड करता है ह्यूमन मेल पर यानी फादर पे, बिकॉज मेल प्रोड्यूसेस 50% ऑफ एक्स स्पर्म एंड 50% ऑफ वाई टाइप ऑफ स्पर्म. तो ये 50% चांस है कि कौन सा स्पर्म जाकर एग को फ्यूज कर रहा है. अगर एक्स टाइप स्पर्म ने फ्यूज किया देन इट विल रिजल्ट इनटू बेबी गर्ल, और अगर वाई टाइप जो है गैमेट या स्पर्म ने एग को फ्यूज किया तो द ऑफस्प्रिंग विल बी बेबी बॉय. तो देयर इज 50-50% चांसेस ऑफ फ्यूजन टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूजिंग द एग, और इसी हिसाब से 50-50% चांसेस है कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है दैट विल बी बेबी गर्ल और बेबी बॉय, मीन्स दैट विल बी फीमेल और मेल, एंड इट completely depends upon the human male. So students, this is all about sex determination and the mechanism of sex determination. In next video, I will discuss about mutations. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.